Hey, what's up, everyone? Praful here. Welcome back. And after a really long time, I'm coming up with a live trading video. बट इस वीडियो में ना मैं इसके ऊपर ज्यादा बात करने वाला हूँ कि कब ट्रेड लेना है rather than whether to do the adjustments, how to do the adjustments. उस वो तो शायद आप लोग जानते हैं because like you've been watching my videos for the last 2 years now, more than 2 years now. But now that we have like 5 expiries, you have to be very choosy about trading the expiries. ठीक है, for example, अगर आज मेरे positions आप देखोगे तो the positions is kind of negligible, है ना? तो it's like thousand quantity short किया हूँ and the margin used is just 20 lakhs out of 1.5 crore margin. तो I'm not using my full margin. मैं इस पोजीशन को जस्ट ऐसे नाम के वास्ते मैंने इस पोजीशन को ले रखा just to have some sort of a eyes on the market so that I'll be able to track the markets efficiently. Now, even though today is expiry and mid cap nifty का volumes भी ठीक ठाक है, even then why I'm not trading full size? First you need to understand कि short wall आप कौन सा instruments में करना चाहिए and what are the favorable scenarios to enter short wall or short gamma trades. Currently the market is at 8525, right? 8525 का call option 22 rupees पे है and 8525 का put option 27 rupees पे है. तो the straddle price is indicating 50 points, right? Now mark 50 points, ठीक है? Mark 50 points कहां पर आएगा? This is 50 points from the high and this is 50 points from the low. आप सोचो, when the previous day's range itself was from 8435 to 86, almost 170 point का range है, and the first candle itself has given this big movement from almost 8565 से लेके 8495, almost 70 point का movement सिर्फ first 5 minute candle ही दिया है. Now, even if we go till the top of the first 5 minute candle, or even if we head till this point, आपका जो भी strangle हो या straddle हो, it will start giving you MTM losses. Because on an expiry day, वेगा ज्यादा गेन नहीं होता, right? IV ज्यादा बढ़ते नहीं. Whatever pain that you get is purely from delta movement. मतलब मार्केट 8525 से लेके 8475 आ गया, आपको लगे कि ओ 50 पॉइंट सडनली मार्केट गिर गया है तो स्ट्रैडल प्राइस बढ़ेगा, you'll get an opportunity to add size or you'll get an opportunity to risk on. नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज उस टाइम पे भी ना 8475 का स्ट्रैडल शायद 50 से कम रहेगा. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, राइट? तो उस टाइम पे स्ट्रैडल प्राइस विल बी लोअर. आपको सिर्फ डेल्टा के कॉस्ट लगेंगे, एडजस्टमेंट के कॉस्ट लगेंगे. प्रोबेबली इफ यू आर in the direction of the markets, probably kind of not take such a big hit, but if you are positioned slightly against the market, then suddenly आपका MTM negative चला जाएगा. So adjustments ठीक है, हम लोगों को पता है कि क्या करना है, कैसे मैनेज करना है पोजीशंस को and all that, but you should also understand when to let go of that potential theta that you're gunning for. तो हो जाता है कभी कभी हो सकता है कि I thought okay, the yesterday's range is extremely wide, the straddle premiums are not they are not enough to compensate the kind of movement that I'm expecting, and हो सकता है कि मार्केट पूरे दिन हो सकता है कि मार्केट इतने रेंज में रह जाए. इट इज पॉसिबल. लास्ट मिड कैप एक्सपायरी भी सिमिलर तरीके का हुआ था. फर्स्ट फॉर 10 मिनट्स में बहुत ज्यादा मोमेंटम आ गया एंड उसके बाद मार्केट जस्ट वेंट साइडवेज, एंड दैट इज कंप्लीटली ओके बिकॉज शॉर्ट वॉल प्लेयर्स या डेल्टा न्यूट्रल प्लेयर्स या शॉर्ट गामा प्लेयर्स को ना इट्स कंप्लीटली ओके टू मिस प्रॉफिट डेज, बट इट इज नॉट ओके टू टेक बिग हिट्स. ट्रेंड फॉलोअर्स को क्या होता है? इट इज द ऑपोजिट. They are completely okay taking like 1 or 2 extra losses, but they cannot afford to miss a single trade which could have potentially be a huge winner, क्योंकि उनका जो रिटर्न्स जो है उनका कॉन्वेक्स रिटर्न्स आता है. हमारा रिटर्न्स जो है हमारा कॉन्वेक्स नहीं होता है. तो दैट इज व्हाई वी शुड ऑलवेज पोजिशन आवरसेल्व्स इन अ वे वेयर आवर लॉसेस आर कैप्ड, आवर लॉसेस आर लिमिटेड. अगर हमारा लॉसेस लिमिटेड हो जाता ना, और अगर हम लोग लॉसेस लेने से बच जाते हैं ना, ऑब्वियसली हमारा मॉडल को पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी आ जाता है. बट ज्यादातर लोगों को क्या करता है, ज्यादातर लोग मतलब भाई एक्सपायरी है, एडजस्टमेंट्स थोड़ा बहुत आता है, ठोक देंगे. तो सुबह आके मतलब ठोकना शुरू कर रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ द वॉल्स माइट बिहेव, हाउ द गामा विल अफेक्ट देम विद इन दैट इंट्राडे मूवमेंट. तो मेरे हिसाब से दिस इज माई कैलकुलेशन. ठीक है, मेरे हिसाब से even if the market comes to like 8475 or something, this will give you a lot of pain even if you are on a straddle. अगर आप स्ट्रैंगल पे है तो अगर यहां तक आने के टाइम पे ना आपका बहुत बड़ा MTM नेगेटिव दिख रहा होगा. तो मेरा अभी प्लान क्या है?
ठीक है, लाइक आई टॉक्ड अबाउट व्हाट टू नॉट ट्रेड। अभी व्हाट टू ट्रेड, तो अभी मेरा प्लान सिंपल है। तो जैसे ये डे लो ब्रीच होगा ना, आई विल टेक अ बेरिश बेट, एक बेरिश ट्रेड लूंगा। नाउ यू कैन आस्क मी लाइक बेरिश ट्रेड कैसे लेंगे, क्या मैं पुट ऑप्शंस बाय कर सकता हूं, है ना, और आई कैन शॉर्ट सम नेकेड कॉल ऑप्शंस, और आई कैन हैव सम बेयर कॉल स्प्रेड्स, और आई कैन हैव सम कॉल रेशियोज। बहुत सारे तरीके से मैं ट्रेड को स्ट्रक्चर कर सकता हूं, ठीक है। डायरेक्शन समझना एक चीज है, ठीक है, किस डायरेक्शन पे ट्रेड लेना, एक डेल्टा बायस होना एक एक चीज है, बट उसको ट्रेड कैसे स्ट्रक्चर करना दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। क्योंकि ट्रेड स्ट्रक्चर कैसे करना है, ट्रेड स्ट्रक्चर यू हैव टू, आई मीन यू हैव टू स्ट्रक्चर योर ट्रेड इन अ वे विच इज कंफर्टेबल फॉर यू टू मैनेज। जिस चीज को आप मैनेज करने में थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस हो, वैसे आपको ट्रेड स्ट्रक्चर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डेल्टा बायस रख के मुझे डायरेक्शनल खेलना है, then I'll probably trade call ratios, or I'll probably trade bull calls, I mean I'll probably trade bear call spreads, but मैं कभी नेकेड कॉल्स में शॉर्ट नहीं करूंगा या पुट ऑप्शंस को मैं बाय नहीं करूंगा, बिकॉज उसको कैसे मैनेज करना आई एम नॉट टू एक्सपीरियंस इन इट। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मुझे आता नहीं है, बट आई एम नॉट टू कंफर्टेबल डूइंग दैट। तो ट्रेड स्ट्रक्चर जो है, it is according to your competence, and it is according to your risk appetite, and it is according to your comfort levels. But डेल्टा बायस जो है, डेल्टा बायस आप प्राइस एक्शन से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस एक्शन तो सबके लिए कॉमन है ना। फॉर एग्जांपल अगर अभी फर्स्ट कैंडल का जो लो टूटता है, ऑब्वियसली आई एम बेरिश, तो उस बेरिश ट्रेड को कैसे स्ट्रक्चर करना है दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो ज्यादातर लोग ना बहुत ज्यादा इस पे फोकस करते हैं कि डेल्टा बायस कैसे निकालना है, कहाँ पे लॉन्ग जाना है, कहाँ पे शॉर्ट जाना है, उसके उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है। देर आर लाइक सर्टन पॉइंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट्स है, वहां पे आपको इधर उस सपोर्ट पे मार्केट बाउंस मारेगा या सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाएगा। नाउ यू हैव टू स्ट्रक्चर योर ट्रेड्स। उस स्ट्रक्चरिंग जो ट्रेड है, पोजीशन साइजिंग है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। तो अभी ट्रेड के बारे में बताने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन में कहां रहूंगा, फॉर एग्जांपल यहां पे आएगा ना, यहां पे आएगा। फॉर एग्जांपल इफ द मार्केट कम्स हियर, देन आई विल प्लान अ शॉर्ट ट्रेड। यहां पे मैं शॉर्ट ट्रेड प्लान करूंगा। अगेन शॉर्ट ट्रेड कैसे प्लान करूंगा वो भी बताऊंगा। नाउ व्हाई एम आई कॉन्स्टेंटली प्लानिंग फॉर शॉर्ट ट्रेड्स एंड नॉट फॉर एनी लॉन्ग ट्रेड्स? फर्स्ट थिंग इज look at the major structure of the market. Major structure of the market continuously 1 2 3 continuously नेगेटिव दिन चल रहा है, तो फर्स्ट मोमेंटम में ही मतलब ये क्रॉस नहीं करने वाला है। तो ऑब्वियसली लाइक आई टेक सम मीन रिवर्शन ट्रेड्स, बट नीचे की तरफ में ब्रेकआउट प्लान कर रहा हूं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आता ना, लेट्स से मार्केट यहां पे आता, यहां पे भी मैं मीन रिवर्शन ट्रेड प्लान कर सकता था, बट आई एम नॉट प्लानिंग दैट। आई एम प्लानिंग यहां पे मीन रिवर्शन ट्रेड एंड यहां पे ब्रेकडाउन का ट्रेड प्लान कर रहा हूं। व्हाई? बिकॉज माय ओवरऑल बायस ऑफ द हायर टाइम फ्रेम इज स्लाइटली बेयरिश, तो उसके हिसाब से मैं ट्रेड करने वाला हूं। एंड या कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आई विल पोस्ट सम वीडियोस, और एल्स लाइक दिस वीडियो इज जस्ट फिर से मैं वीडियो बनाना चालू किया है, एंड आई विल जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग वीडियोस। आई विल ट्राई टू बी रेगुलर, बिकॉज अभी मतलब मेरे सिर्फ एक ही अकाउंट में ट्रेड हो रहा है, तो मैं आराम से मतलब आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मतलब कुछ ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ आपको। बट अगर बहुत सारे मतलब सारे एल्गोरिदम्स एवरीथिंग सब एक साथ रन कर रहा होता ना, तो मोस्ट प्रोबेबली लाइक आई एम नॉट टू कंफर्टेबल letting my guards down and talking into the camera and all that. But yeah, I'll try my level best to come up with videos. अभी फिलहाल के लिए तो दिस इज द पोजीशन। बस पेनी ऑप्शन है, वो भी पेनी ऑप्शन भी देखो भाई, 20 लाख का मार्जिन यूज्ड है 1.5 CR का अकाउंट में, तो नथिंग, इट्स जस्ट लाइक just to monitor the positions, that's all, बस।